Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So we are preparing for SBI PO 2021. We will continue our preparation. Today you will attempt the 10th mock test from 2020 series of SBI PO. Link of this mock test I have provided you in description and comment column. Use this link and subscribe to this mock test. If you have not taken the annual plan till now, you should definitely take annual plan today so that you have access to all the mock tests of various exams. After attempting 10th mock test, you will come to know what areas are strong and what areas are weak. Note down these topics in your copy and make a timetable and start covering weak areas. Devote 1 hour to English, half an hour rest. 1 hour to quant, half an hour rest. 1 hour to reasoning, half an hour rest. Now the question comes, what should be done during these hours? So for your benefit, I have made right way of preparation videos. Link is available in description box. Watch those videos that will help you and show you the path what is to be done. Then comes the current affairs. For current affair, I have given you a source. Use that link and subscribe to July 20 to December 20 current affairs as well as 2021 current affairs. And start reading from monthly PDF. Use coupon code AA03 to have 10% discount for current affairs. Now, in this year SBI PO main examination, questions from very wide sources. So some people are apprehensive from where we should read and what should be our strategy. Is this source is sufficient or we should utilize other sources? In general awareness, nothing is sufficient. This we have to always keep in mind. As there is no defined syllabus for general awareness, questions can come from any source. But can we cover that much of sources? It is difficult. And that's why it is always advisable we should stick to some sources and read that exhaustively. And many questions may come from there and some questions may come from other sources. But if we are able to do many questions from such sources, if we have done meticulously, it is sufficient to clear our examination. But if you can read more and more things, it is always better, but you don't have that much of time. And that's why we have to rely on one source and continue our preparation. Second important area is banking knowledge. So I have created videos on static banking as well as banking current affairs. So the link of this 193 videos is available in description box. Watch 10 videos daily. It is going to help you. In recent exam also, some questions came from these videos. Then banking current affair is equally important. Again, there are videos since July 20. Watch these videos and be knowledgeable. That should be your strategy. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. हम SBI PO 2021 की तैयारी कर रहे हैं. उसके लिए मैंने आपको एक अच्छा मॉक टेस्ट सजेस्ट किया. लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट कॉलम में दिया. इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए. सब्सक्राइब करने के बाद आप आज 10वां मॉक टेस्ट 2020 सीरीज से करेंगे. जिन लोगों ने अभी तक ये मॉक टेस्ट नहीं लिया उनको आज ये मॉक टेस्ट ले लेना चाहिए, चाहे उनके पास कोई भी दूसरा मॉक टेस्ट है. आप मुझे कम्प्लीमेंट करेंगे. मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद आप देखिए आपके कौन से क्वेश्चन गलत हो गए हैं या कौन से क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हैं. इसको हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ वीक एरियाज.
तो जो व्यक्ति अपने वीक एरियाज को ढूंढ पाता है और अपनी स्टडी उस पर केंद्रित कर देता है, वो कामयाब हो जाता है। तो आपने इस वीक एरिया को ढूंढना है, फिर टाइम टेबल बनाना है। 1 घंटा इंग्लिश को देना है, आधे घंटे का रेस्ट। 1 घंटा क्वांट को, आधे घंटे का रेस्ट। 1 घंटा रीजनिंग को, आधे घंटे का रेस्ट। अब इसमें करना क्या है, उसके लिए अलग वीडियो रहता है, राइट वेज ऑफ प्रिपरेशन। उसका वीडियो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। उन वीडियोस को ध्यान से देख लीजिए, उससे आपको पता लगेगा हमें क्या करना चाहिए, उसको आप करिए। इसके बाद हमें जनरल अवेयरनेस की तैयारी करनी है। 1 घंटा आप करंट अफेयर्स को दीजिए। इसमें आपको जुलाई 20 से दिसंबर 20 और 2021 के करंट अफेयर के प्लान ले लेने चाहिए। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। AA03 कूपन कोड आप यूज कर लीजिए, 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। अब ये जो सोर्सेज हैं, इसमें से आपको हमेशा जो एग्जॉस्टिव सोर्स है, जो स्टडी PDF है, उससे तैयारी करनी चाहिए। ये पहले भी मैं कहता आ रहा हूं, आज भी मैं कह रहा हूं। अब जब इस साल SBI PO का एग्जाम हुआ, कुछ लोगों का मानना है कि सर ये तो बिल्कुल ही अलग चीजें आ गई, और क्या क्या करना है। जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स का कोई सिलेबस नहीं होता है। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, पर मूलभूत बात यह है कि क्या हम बहुत सारे सोर्सेज से पढ़ाई कर सकते हैं, उतना टाइम हमारे पास है? तो आंसर होता है नहीं। तो सही टेक्निक ये होती है कि जो हमारे पास सोर्सेज हैं, उसको हमें एग्जॉस्टिव तैयारी करनी चाहिए। और जो लोग एग्जॉस्टिव तैयारी करते हैं, वो काफ़ी क्वेश्चन उसमें से कर ही पाते हैं। क्योंकि होता क्या है कि मान लीजिए 40 क्वेश्चन है, हम 20 या 22 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, 18 नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे मन में पैनिक आता है, ये 18 नहीं हम कर पाए तो हमारा सोर्स छोटा है। पर ये 18 दूसरे लोग भी नहीं कर पाए। महत्वपूर्ण क्या है कि अगर दूसरे ने 16 किए हैं क्वेश्चन और आपने 22 किए हैं, तो आप विनर ही हैं। क्योंकि अनलिमिटेड सोर्स कोई नहीं पढ़ सकता, और कोई भी एक पर्टिकुलर पेपर आ जाए, उसमें कुछ क्वेश्चन इधर उधर से आ जाए, उससे पैनिक होके हम अपने सोर्सेज को चेंज करने लगे, इधर उधर की पढ़ाइयाँ शुरू कर दें, तो उसमें टाइम ही वेस्ट होगा। हमें एक ही रास्ते पे चलते रहना चाहिए, और हमारा एफर्ट क्या होना चाहिए, जो हम अटेम्प्ट करें 100% करेक्ट करें और औरों से बेहतर करें। मेरा मानना तो ये है। बाकी आपको अगर लगता है किसी सोर्स से हम कर सकते हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। इसके बाद आप रेस्ट दीजिए आधे घंटे का, और 10 वीडियोस बैंकिंग, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक अवेयरनेस प्लेलिस्ट से देखिए। इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं जिन्होंने इसको समझा कंसेप्ट को, और वो उन क्वेश्चंस को, इन कंसेप्ट्स को अप्लाई करके आंसर कर पाए। आधे घंटे का रेस्ट कीजिए। फिर बैंकिंग करंट अफेयर की वीडियोस हैं, उसको डेली बेसिस पे देखिए। वो लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अगर हम सिस्टमेटिक तैयारी करते हैं और रेगुलर तैयारी करते हैं, तो हम जरूर कामयाब होते हैं। सो गॉड ब्लेस यू। और